Okay. So we're gonna have to target about antimicrobial protein. अब हमारे पास second line of defense में phagocyte और cytotoxicity का part cover up हो चुका है, and we're gonna have to head in towards antimicrobial protein. And that antimicrobial protein, it also I have to divide it into the three certain part, and let's see what are the things we have in that. Very first thing I have to target, that is about for lysozyme. You must have to know what is it, what it can be. The next one, that is what complementary protein. And the last one, that is what lymphocyte, sorry, interferon and lymphocyte. Okay, ji. So that is the thing which I'm gonna have to start for antimicrobial protein. And yes, class, if I have to make sure about for antimicrobial protein, these are the protein which work against microorganism. कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं की. These are the protein which work against the microorganism, जिसमें सबसे पहला हमारे पास प्रोटीन आ रहा है, that is what called lysozyme. And yes, class, I have to ask you about for a part that what is lysozyme, which system you have studied about for lysozyme previously. इससे पहले lysozyme तुमने कहाँ स्टडी किया? What is the thing we have to study about for lysozyme? Yes, class, I waited for the response. Just do answer what you know about for lysozyme. Don't follow the Google, don't follow your book to follow kar sakte ho, but I have to say that which thing where you gonna have to study about for lysozyme. Yes, class. And if you don't know about for it, you're gonna have to make sure that you don't know. Okay, so I'm not wasting my time as well as yours. So class, I have to make upon a part for production of milk. No, exactly not. That is not, that is prolactin, which is responsible for the production of milk. Yes, Filza, it would be certainly right. It is being present on saliva. Saliva में मौजूद होता है. अगर मैं बात करता हूँ saliva के हवाले से, तो saliva में हाँ नेचुरली अकरिंग एंजाइम तो है. कहाँ मौजूद होता है? स्लाइवा, पर्टिकुलरली स्लाइवा में. जैसे कि आप जानते होंगे कि स्लाइवा में 95% वाटर होता है और 5% सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास लाइसोजाइम होता है, टाइलिन होता है, और वी हैव लाइसोजाइम एंड टाइलिन. So class, we have to know that what is the working of lysozyme in our saliva. Basically, this lysozyme is responsible for what? It referred to be as what? Antibacterial. It having what? Which property do it have? It having antibacterial property. It kill germs of food when comes in mouth. So class, as we know that the process of digestion, अगर मैं बात करता हूँ डाइजेशन के हवाले से, तो क्लास डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द रीजन ऑफ माउथ. ऐसा नहीं है कि डाइजेशन स्टमक में जाके स्टार्ट होती है. डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द रीजन ऑफ माउथ, और जैसी माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होती है तो स्लाइवा इज समवॉट ऑफ फर्स्ट थिंग व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर सॉल्युबलाइजिंग द फूड. म्यूकस होता है, टाइलिन होता है, और लाइसोजाइम होता है, जो फूड पे अफेक्ट करता है केमिकली. अब म्यूकस और टाइलिन का तो रोल डाइजेशन के हवाले से, लाइसोजाइम का रोल आता है हमारे पास इम्यूनिटी के हवाले से, एक्टिंग एज अ एंटीबैक्टीरियल पार्ट. इट किल जर्म्स ऑफ फूड व्हेन कम्स इन माउथ. ये जो भी फूड के साथ जर्म्स आते हैं, मोस्टली इट अफेक्ट ऑन बैक्टीरिया. मोस्टली ये किस पे अफेक्ट करता है? इट अफेक्ट ऑन बैक्टीरिया. एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल. अगर ये तुम लोग लिखना चाहो, आई डोंट हैव सफिशिएंट स्पेस ओवर हियर, मैं कुछ बातें ऐसी कहता जा रहा हूं, बल्कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं तो वो ज्यादा बेहतर होगा. आई हैव टू रब दैट पार्ट. That how it acting as an antibacterial. ये antibacterial क्यों कहलाता है? Because it ruptures or digests cell wall of bacteria. तो ये एक चीज है जो याद रखना तुम लोग कि lysozyme, what does lysozyme to be a antibacterial property, to having an antibacterial property. lysozyme ऐसी क्या कंडीशन परफॉर्म करता है जिसकी वजह से ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी कहलाता है, जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी कहलाती है. तो याद रखना कि lysozyme is responsible for rupture or digest the cell wall of bacteria. और इसी के साथ आई डोंट हैव टू मेक इट टिल ओवर हियर. यहाँ पे से मैं डाइजेशन का पार्ट स्टार्ट नहीं खत्म नहीं करूंगा. फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 में, एंड दैट साइकिल इज कॉल्ड लाइटिक साइकिल. हैव यू हर्ड दैट पार्ट बिफोर? हैव यू हर्ड दैट साइकिल बिफोर? यस क्लास, यस और नो में मुझे आंसर आउट करो इसका. ओके, सो यस निम्रा, यस फिजा, व्हाट डज इट डू? व्हाट डज दैट साइकिल डू? Yes, class. What is the responsibility of that cycle? इस साइकिल का काम क्या होता था? What is the responsibility of it? What does it can do? What it can do?
अच्छा तो भाई मैं आपको बताता चलूं कि लाइटिक साइकिल में हमारे पास बैक्टीरियोफेज होता था विच इज अ वायरस। लाइटिक साइकिल में हमारे पास बैक्टीरियोफेज होता था विच इज एक्टिंग एज अ वायरस एंड दैट बैक्टीरियोफेज इज रिस्पांसिबल फॉर किलिंग द बैक्टीरिया। That bacteriophage is responsible for killing the bacteria. Destruction of infected cell. No, virus production. ठीक है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता था जो बैक्टीरिया को किल करता था। तो भाई बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कैसे होता था? अब वायरस है, वायरस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कैसे होता था? ये वायरस अपना जीनोमिक पार्टिकल बैक्टीरिया के अंदर किस तरह से इंट्रोड्यूस करता था? तो बैक्टीरियोफेज भी सबसे पहले, अगर बैक्टीरिया के अंदर कोई चीज एंटर करनी है तो याद रखना कि बैक्टीरिया इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय सेल वॉल। जैसे कि हमारी बॉडी स्किन से प्रोटेक्टेड है, इसी तरह बैक्टीरिया की बॉडी सेल वॉल से प्रोटेक्टेड है। अब बैक्टीरिया की बॉडी एंटर द जीनोमिक पार्टिकल ऑफ द वायरस इनसाइड द बैक्टीरिया। लाइटिक साइकिल में बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया के अंदर अपना जीनोमिक पार्टिकल एंटर करता है, लेकिन करेगा कैसे? बैक्टीरिया इज बीइंग सराउंडेड बाय सेल वॉल, तो वो वायरस भी लाइसोजाइम रिलीज करता है ताकि बैक्टीरिया का सेल वॉल डाइजेस्ट हो, रप्चर हो और उसके अंदर जीनोमिक पार्टिकल एंटर किया जाए। तो ये लाइटिक साइकिल में भी लाइसोजाइम इस्तेमाल हो रहा है। और आप याद रखिएगा डाइजेशन में स्लाइवा में लाइसोजाइम मौजूद होता है कि फूड के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया फूड के साथ हमारी वेरी फर्स्ट एक्शन ऑफ लाइसोजाइम. So that is a certain first thing which you're gonna have to remember, and the next thing which I'm gonna have to start about for complement protein. And now what we have in that? Now complement protein, what are the things do we have in that? So class, this protein you're gonna have to remember. Complement protein, a protein release to kill microbes. These are the complementary protein. These are the various type of protein which are being released in order to stop the activity of microbes, in order to kill the activity of microbes. ये microbes की activity को क्या करता है? kill करता है, मतलब उनकी production को बढ़ने नहीं देता है. It stops the production of microbes. भाई देखो, अगर हमारी बॉडी या किसी पेशेंट की बॉडी में भी अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसर्ट हो रहा है तो वो अपनी ग्रोथ बढ़ाता है. अब उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए द बॉडी हैव टू रिलीज अ सर्टेन टाइप ऑफ अ प्रोटीन इन ऑर्डर टू स्टॉप देयर ग्रोथ. So that is certainly working about, that is interferon and lymphocytes, and let's see what are the things we have in that. Interferon, and the next one is lymphocytes. तो भाई lymphocytes के बारे में तो अभी तुम लोगों ने पढ़ा. lymphocytes ओके, lymphocytes के बारे में तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि what is lymphocytes. So you, one word for lymphocytes, that it is responsible for working for production of antibodies, and interferon, it's certainly a hormone which is responsible for produces working against viral action. ये viral action को क्या करता है? inhibit करता है. The viral action would be inhibited by interferon, and lymphocytes are responsible for the formation of antibodies. So class, I just not make the thing for getting very long. ठीक है, तो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स आर रिलीजिंग इंटरफेरॉन, जो the protein which are being produced by virally infected cell, that is called what? Interferon. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बल्कि, protein which released by virally infected cells, that is called what? Interferon. Interferon, these are the protein which released by virally infected cell. अब देखो भाई, वो सेल जो कि वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं, हाउ डू दे रिस्पॉन्स द बॉडी कि बॉडी में नेगेटिव एलिमेंट आ रहा है. मुझे मेरी एक बात को यहाँ पे टारगेट करो, सेकंड करना मेरी बात को. अगर कोविड वायरस या कोई भी वायरस, फ्लू वायरस, कोई भी वायरस अगर बॉडी में एंटर होता है तो हाउ डज it would be released by the body, it would be produces by the body, मतलब हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी में मौजूद होते हैं. certainly produces by the bone marrow, by the working action of the bone marrow की वजह, बोन मैरो में ही इनकी साइट ऑफ सिंथेसिस होती है. ठीक है, सबसे पहली चीज. तो इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई भी चीज हो फिलदा, याद रखना कि वो प्रोड्यूस का चीज हो. जैसे कि हम जानते हैं कि WBC इज आल्सो बी प्रोड्यूस इन बोन मैरो, तो इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई भी चीज जिसका साइट ऑफ सिंथेसिस हमें पता करना हो वो क्या होगा? बोन मैरो का. वुड यू गेट दैट पार्ट? अच्छा, अब मेरी इधर से यहाँ पे स्टोरी सुनो. यहाँ पे जो मैं चीज कहना चाह रहा हूँ उसको सुनने की कोशिश करो. इंटरफेरॉन, व्हाट इज इट? पहले तो हम बात ये करेंगे, कोई भी वायरस अगर बॉडी में एंटर होता है, हाउ डज द बॉडी लेटिंग अस नो? अगर कोई भी वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है, सो हाउ डज द बॉडी नो इट?
Yes, class. I'm just waiting for the response. If the virus entering into the body, so how does the body temperature increases? Okay. अच्छा देखो भाई, अब यहाँ पे पूरी वर्किंग समझना कि देखो बॉडी में वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आ रहा है, फर्स्ट हैव टू क्रॉस द फर्स्ट लाइन, स्किन क्रॉस किया, म्यूकस मेम्ब्रेन क्रॉस किया, बात आती है सेकंड लाइन पे। सेकंड लाइन में इंटरनल ऑर्गन है जिसमें हमारे पास फैगोसाइड है, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन है और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है। फैगोसाइड में आपने देखा न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, एनके सेल, साइटोटॉक्सिसिटी, लाइसोजाइम, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। जब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन तक वर्किंग हो चुकी होती है एंड स्टॉपिंग एक्टिविटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर भी स्टॉप नहीं होता, तो बॉडी डू व्हाट, बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंटरफेरॉन। बॉडी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इंटरफेरॉन प्रोड्यूस कर रहा है। और ये इंटरफेरॉन क्यों प्रोड्यूस कर रहा है बॉडी? इंटरफेरॉन और एंटीबॉडीज क्यों प्रोड्यूस कर रहा है बॉडी? ताकि इंटरफेरॉन की वजह से हमारी बॉडी में कौन सा रिस्पॉन्स आए? हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आए। ये क्यों है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स? ताकि हमारी बॉडी अवेयर हो, अलार्म्ड हो, इंडिकेट हो। ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है? ताकि हमारी बॉडी को क्या मिले? इंडिकेशन मिले। किस चीज की इंडिकेशन मिले? कि द बॉडी इज बीइंग सफरिंग बाय एनी ऑफ द वायरस, द बॉडी इज बीइंग सफरिंग बाय एनी ऑफ द बैक्टीरिया। अब मुझे एक बात बताओ, if a patient having fever, if a patient having flu, if a patient having diarrhea, if a patient having vomiting, if a patient having a body pain, if a patient having a high grade fever, तो likely ये किसके साइन एंड सिम्टम्स बता रहा हूं मैं? likely ये किसके साइन एंड सिम्टम्स है? कौन सा ऐसा वायरस है कि जिसमें फीवर हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, वॉमिट हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट कंजेशन हो रहा है, कफिंग हो रही है, वेरी वेल, कोविड। तो ये जो भी साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, बात ये किसकी वजह से आ रहे हैं? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से आ रहे हैं। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से आपकी बॉडी को इंडिकेशन दी जा रही है, बाय हैविंग फीवर, बाय हैविंग कफ, बाय हैविंग चेस्ट कंजेशन, बॉडी को ये इंडिकेट किया जा रहा है कि योर बॉडी वुड नॉट गेटिंग बाय द डिफेंस सिस्टम ऑफ योर बॉडी, मतलब आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है, एंड योर बॉडी इंडिकेट यू टू डू फॉर समथिंग। आपको जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दिया जा रहा है वो आपको अवेयर किया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है कि आपका डिफेंस सिस्टम बॉडी का फेल हो चुका है, सो यू गोना हैव टू वर्क बाय सम एक्सटर्नल थिंग। तो अगर ये रिस्पॉन्स आ रहा है तो भाई पेशेंट को फीवर हो रहा है, कफ हो रहा है, सारी चीजें जो साइन एंड सिम्टोमेटिक कंडीशंस हो रही हैं पेशेंट्स की, तो भाई पेशेंट को इससे अवेयर किया जा रहा है, मतलब बॉडी इसको और प्रोलॉन्ग कंडीशंस पे नहीं लेके जा सकती, यू गोना हैव टू मेक समथिंग अरेंजमेंट। तो दैट्स वाई ऑन दिस कंडीशन, देखो जब तक पेशेंट को फीवर नहीं आता, जब तक पेशेंट को फीवर नहीं होता, कफ नहीं होता, मसल पेन नहीं होता, तब तक पेशेंट एंटीबायोटिक या तब तक पेशेंट मेडिकेशन स्टार्ट नहीं करता, isn't it or not? So let me very clear about for that. When the inflammatory response, when the inflammatory response have indicated the body, inflammatory response body को कब indicate होगा? जब बॉडी से क्या रिलीज होगा? इंटरफेरॉन। जब बॉडी से क्या रिलीज हो रहा है? इंटरफेरॉन। और कल मैंने एक चीज तुम लोग को बताई थी, देखो इंटरफेरॉन रिलीज होगा तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कौन? वन ऑफ द थिंग दैट इज कॉल्ड व्हाट? बेसोफिल्स। इंटरफेरॉन की एक्टिविटी किसको पहले पता चलेगी? बेसोफिल्स को। एंड यस क्लास, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर बेसोफिल्स, बेसोफिल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग व्हाट? बेसोफिल क्या रिलीज करते थे? कल मैंने थोड़ा सा डिटेल टॉपिक यहाँ पे इंडिकेट किया था, सो क्लास आई हैव टू अश्योर यू फॉर दैट ओवर हियर दैट बेसोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? क्या रिलीज कर रहे थे बेसोफिल्स? Class, I require answers quick. So class, if I am asking about for basophils, what is the thing which have to be released by the basophils? Yes, class, I am waiting for the answer. Histamine. Very well, Nimra. So class, basophils is responsible for producing histamine, and that production of histamine produces the inflammatory response. ये जो प्रोडक्शन है हिस्टामिन की, ये क्या कौन सा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। देखो भाई, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिर्फ फीवर का आना नहीं होता, कहीं पे जलन हो रही है, कहीं पे खारिश हो रही है, कहीं पे कोई चीज रेडनेस हो रही है, कहीं पे कोई चीज बर्न हो रही है, कहीं पे कोई चीज पेन हो रहा है, तो क्लास दैट ऑल टू द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूं कि हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट इंजर्ड होता है, इन्फेक्टेड होता है, वहां पे एक कंडीशन, जैसे कि अगर सर पे चोट लगती है तो सर का जो वो पार्ट होता है वो स्वेल कर जाता है, तो स्वेलन, रेडिशनेस, हीट, पेन, बर्निंग सेंसेशन,
ये सारी कंडीशन हमारे पास किस में आती है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में। और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स किस लिए प्रोड्यूस होता है, ताकि बॉडी को अवेयर किया जाए, ताकि बॉडी को इंडिकेट किया जाए दैट द थिंग कैन नॉट बी स्टेबलाइज फ्रॉम द नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, कि अब चीज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के बस में नहीं है। The body have to work to take medicine. The body must have to start its medication. That's why nature gave us a response that is called inflammatory response. हमारी बॉडी में खुदा ना खास्ता वायरस आके कितनी ही तबाही मचाना शुरू कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमें बिल्कुल एट द एंड पता चले। वी कैन लेट इट नो बाय द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। इंटरफेरॉन रिलीज होने लग जाता है, जैसे सेल, वो सेल जो एक्टिव हो जाते हैं, वो सेल एक प्रोटीन रिलीज करते हैं जिसको आप कहते हो इंटरफेरॉन, और ये इंटरफेरॉन जाके बेसोफिल सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, और ये बेसोफिल सेल हिस्टामिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस प्रोड्यूस होता है। ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस सिर्फ फीवर के हद तक नहीं रहता। इट कुड बी फीवर, it could be redness, it could be swelling, it could be burning sensation, it could be anything which, ये वो चीज है जो हमें इंडिकेट करेगी ये बॉडी स्टेबल कंडीशन में नहीं है। और अगर बॉडी स्टेबल कंडीशन में नहीं होती तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस की वजह से बॉडी में पायरेक्सिया प्रोड्यूस होता है विच यू कॉल्ड एज फीवर, ताकि वो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में नॉर्मल टेम्परेचर में वर्किंग कर रहे हैं वो फीवर की वजह से, फीवर को बुरा नहीं कहना चाहिए, यू ऑल नो अबाउट इट कि फीवर को बुरा नहीं कहना चाहिए, आपकी इंडिकेट करता है कि आपका मैकेनिज्म, इंटरनल मैकेनिज्म, डिफेंस सिस्टम सही वर्किंग कर रहा है, और सही वर्किंग कर रहा है इन अ वे दैट इट अलार्म्स यू एट द टाइम व्हेन देयर इज एनी रॉन्ग थिंग एंटर। तो इसी तरह अगर मैं तुम लोग से एक बात करता हूं क्लास के, वैक्सीनेशन का आजकल बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है, वैक्सीनेशन का आजकल काफी जोर है। तो वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी अगर किसी पेशेंट को फीवर आता है, so what it could be, either it could be the positive response of the body or it's a negative response. बिल्कुल ठीक। Well, what is vaccination by the way? It's a dead virus particle which have to be enter into the body. A dead virus particle है जो बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है, और अगर ये डेड वायरल पार्टिकल है जो कि बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है, तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है तो बॉडी उसको देखते हुए क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बॉडी उसको देखते हुए इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस प्रोड्यूस कर। अगर वैक्सीनेशन लगाने के बाद फीवर आ सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं और कोई इसमें नुकसान नहीं, बल्कि ये उल्टा हमें बता रहा है कि हमारी बॉडी का सिस्टम सही मायनों में वर्किंग परफॉर्म कर रहा है। नहीं आ रहा इट्स ओके, लेकिन आ रहा है तो उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। दैट इज समवॉट अ मेडिकल अवेयरनेस यू गोना हैव टू अवेयर for your all elders who are not being vaccinated. You're gonna have to make a bond for the inflammatory response. That is all the thing which I'm gonna have to work upon for second line of defense. And now we're gonna have to move on to the third line of defense. Class, third line of defense particularly we cannot make it for today. लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पे आप लोगों को इंडिकेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें आप लोगों को इंडिकेट करूंगा। If I'm talking about for specific लाइन ऑफ डिफेंस और एडेप्टिव लाइन ऑफ डिफेंस जो कि पर्टिकुलर टाइप के लिए होता है। अच्छा, एक और चीज जो मैं तुम लोग को बताता चाहिए, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस तो आप इसको कह रहे हो, लेकिन साथ साथ इसमें सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की भी इन्वॉल्वमेंट मौजूद होती है। तो वी कैन नॉट से दैट इन एडेप्टिव और इन स्पेसिफिक लाइन ऑफ डिफेंस द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस वर्क ओनली, the second line of defense also produce its involvement. second line of defense भी अपनी involvement इसमें produce करता है, ये चीज याद रखना। And yes class, if I'm talking, have to be produced by means of a certain type of gland that is called thymus gland, and it produces one of the hormone that is called thymosin, जिसका अभी starting में ही मैंने जिक्र किया था। And yes class, it produces its working by means of two types. Third line of defense को जो मैं divide करूंगा class, I'm gonna have to divide it into the two type. One is called CMI and the next one is called HI. Third line of defense would be targeting into the two part. One is called CMI and the another one is called HI. CMI क्या होता है? CMI that refer to be as what? That refer to be as cell mediated immunity, and the HI that refer to be as humoral immunity. अगर बात की जाए ह्यूमरल इम्यूनिटी के हवाले से, तो क्लास ह्यूमरल इम्यूनिटी दैट प्रोड्यूसेस इट्स वर्किंग फॉर बी सेल्स, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी अपनी वर्किंग किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा है? इट प्रोड्यूसेस इट्स वर्किंग फॉर द बी सेल्स, एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वर्क्स फॉर टू परफॉर्म इट्स वर्किंग फॉर टी सेल्स। अब यहाँ पे इसको स्पेसिफिक मैं किस तरह से बनाऊंगा, तो ये देखना कि बी सेल्स वर्क अगेंस्ट ओनली फॉर बैक्टीरिया, कि बी सेल्स वर्क्स ओनली अगेंस्ट व्हाट? इट वर्क्स ओनली अगेंस्ट bacteria, whereas T cells work against virus, fungi, protozoa. So that is the thing which you gonna have to remember. थोड़ी सी चीजें ये यहाँ पे तुम लोग याद रखोगे। आज मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का, बिकॉज
तो जरा सा देखते जाओ। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस वुड कॉल अ पर्टिकुलर टाइप, एडेप्टिव टाइप या स्पेसिफिक टाइप। क्यों कहलाता है ये स्पेसिफिक टाइप? नॉन स्पेसिफिक पे भी बताया, स्पेसिफिक टाइप पे भी सुनते हुए चलो कि थर्ड, बाय द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस वुड बी स्पेसिफिक और एडेप्टिव। एक और चीज यहाँ पे मर्जअप करना कि थर्ड लाइन सेकंड लाइन के साथ इन्वॉल्व होकर अपनी वर्किंग प्रोड्यूस करता है। एंड द थर्ड लाइन आई हैव डिवाइडिंग इट इनटू द टू पार्ट, वन इज सीएमआई एंड अनदर वन इज एचआई। सीएमआई क्या कहलाता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एचआई क्या कहलाता है? वर्क्स फॉर बी सेल एंड सीएमआई वर्क फॉर टी सेल्स। बी सेल्स वर्क फॉर बैक्टीरिया एंड टी सेल वर्क फॉर वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे दोनों चीजें क्या हो गई है? बाइफर्केशन हो गई है, स्पेसिफिसिटी आ गई है कि टी सेल बैक्टीरिया पे वर्किंग नहीं करेगा और बी सेल वायरस, प्रोटोजोआ और फंजाई पे वर्किंग परफॉर्म हो रही है। यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें स्पेसिफाई हो रही हैं। अगर बात की जाए नॉन स्पेसिफिक के हवाले से, तो नॉन स्पेसिफिक चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो या प्रोटोजोआ हो, इट वर्क्स फॉर ऑल, ओवरऑल मैंने लिखा ना। और स्पेसिफिक पे हमारे पास क्या चीज आ रही है? इट वर्क्स ओनली फॉर द पर्टिकुलर टाइप। जैसे कि दो टाइप है, सीएमआई और एचआई, सिर्फ बैक्टीरिया के लिए, और सीएमआई वर्क्स ओनली फॉर द virus, protozoa and fungi. HI does not work for virus, bacteria and virus, protozoa and fungi, whereas CMI does not work for the bacteria. यहाँ पे हमारे पास specificity आ रही है into the third line of defense. So की तरफ इसको कवर अप करेंगे। यहाँ पे आज हमने डिटेल किया फर्स्ट लाइन